Hi guys, welcome to CPP Valley. Let us continue our C++ interview series. This is the third video of the series, and the question is, can constructors be virtual? So let us start. अब इसका आंसर तो नो है, बट इफ इंटरव्यू में यार अगर बस तुम बोलोगे कि नो, then definitely he is not going to accept it, right? अगर तुम बोलोगे नो क्योंकि VPTR एग्जिस्ट ही नहीं करता है, then the interviewer will be interested, and then only he would try to deep dive into your thinking process. Okay, so to make you understand this, first I want to touch upon a very simple yet very conceptual topic of memory model. So object कैसे बनता है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं. So whenever you write a class and let's say object, so in this case let's say whenever we write dog d, okay, so now whenever you write this, compiler does three things. All the three things are done in sequence. First, it allocates a memory, so whether on stack or heap, here it will allocate a memory on stack. So that is the storage part. ठीक है? And an object is created when it has a storage and when in that storage construction has happened. So object creation is a multi-stage process which involves a memory allocation plus construction. So generally it happens that your standard global allocators may allocate memory using operator new, and then the construction would happen in that memory using the placement new. So these two are concepts which internally happens whenever you do let's say new, whenever you do new class name, right? So there, this is the process which happens. Now understand that every object creation process has the steps I mentioned. And now take a scenario where you have a virtual constructor. Let us assume you have qualified constructor as a virtual. In that scenario, first the memory will be allocated. Then remember I told you in my earlier lectures that during the object creation there is a Vtable which is created, and this Vtable is created for each of the polymorphic classes which has that virtual function. So if a polymorphic class has a virtual function, there is going to be a Vtable for that. Now I also told you that there is a hidden pointer which is Vptr, and that Vptr is attached to object, meaning during creation of object the Vptr is set to point to Vtable. Okay, then what happens? Then the constructor body further runs. Okay, and this sequence is very critical. ओके इसको आप दिमाग में पकड़ लो क्योंकि यहीं पे पूरा आंसर है. अब सोचो, अगर आपने कंस्ट्रक्टर को वर्चुअल बनाना हो, समझ रहे हो, कंस्ट्रक्टर को आपने अगर वर्चुअल बनाना हो, इसका मतलब है कि इस कंस्ट्रक्टर को रन करने के लिए VPTR लगेगा, और VPTR Vtable में कंस्ट्रक्टर का एड्रेस सर्च करके लाएगा, तब ये कंस्ट्रक्टर चलेगा. लेकिन VPTR Vtable को तभी पॉइंट करेगा, या फिर Vtable तो सेट ही कंस्ट्रक्टर के अंदर होता है. मतलब कि Vtable तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना जब कंस्ट्रक्टर शुरू होता है. कंस्ट्रक्टर जब चल जाएगा तब ये सारा VPTR Vtable को पॉइंट करेगा. Vtable में सारे वो
हमारे ये वर्चुअल जितने भी फंक्शंस हैं वो एड्रेस वो सेट हो जाएंगे। तो दिस इज़ लाइक अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम कि आपको वर्चुअल डिस्पैच चाहिए, तो वर्चुअल डिस्पैच के लिए आपको वी टेबल चाहिए, है ना। मतलब आप बोल रहे हो द प्राइमरी क्वेश्चन इज कि आपको कंस्ट्रक्टर को वर्चुअल बनाना है, इसका मतलब कि आपको कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है वीपीटीआर से, मतलब कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टर पे आपको वर्चुअल डिस्पैच चाहिए। अब कंस्ट्रक्टर पे आपको अगर वर्चुअल डिस्पैच चाहिए इट मीन्स कि आपको वी टेबल चाहिए होगा। अब वी टेबल कैसे होगा? वी टेबल तो तभी एग्जिस्ट करेगा ना जब कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वी टेबल को कौन पॉइंट करेगा? वी टेबल को वीपीटीआर ही तो पॉइंट करेगा, है ना। अब वीपीटीआर आप बोल रहे हो कि जब हमारा कंस्ट्रक्टर चलता है तब बनता है, तो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कैसे करेगा बिना कंस्ट्रक्टर चले हुए? अभी मैंने आपको समझाया कि जब तक कंस्ट्रक्टर कंप्लीट नहीं होगा ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं। तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए ऑब्जेक्ट बनने के लिए। अब आपको कंस्ट्रक्टर चलना भी चाहिए और फिर आपको वर्चुअल डिस्पैच भी चाहिए, तो ये तो लूप हो गया ना कि आपको वर्चुअल डिस्पैच चाहिए तो वी टेबल आपको पहले चाहिए होगा, ठीक है ना। मतलब अगर कंस्ट्रक्टर को आपको वर्चुअल बनाना है, मतलब कि आपको वर्चुअल डिस्पैच चाहिए कंस्ट्रक्टर पे, तो हमें जब रन होता है रन टाइम पे हमें वी टेबल में उसका एड्रेस ढूंढ के लाना होता है ना, जो वीपीटीआर करता है। लेकिन वी टेबल तो सेट ही होता है कंस्ट्रक्टर के अंदर, मतलब वी टेबल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता जब तक कंस्ट्रक्टर शुरू नहीं होता। तो कंस्ट्रक्टर को आप रन टाइम पे वी टेबल से सर्च करके रन करोगे, वर्चुअल डिस्पैच करोगे, लेकिन वी टेबल तो बनेगा ही नहीं ना जब तक कंस्ट्रक्टर शुरू नहीं होगा। तो ये देख के सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड ने सिंपली डिसाइडेड कि नो, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी वर्चुअल, ठीक है। सो this was about this, and I think in this lecture I'm not going to deep dive again into Vtable and Vptr, because I think to some extent I have already covered in my previous lectures. Okay, तो या तो सी प्लस प्लस का जो स्टैंडर्ड है विच सी प्लस प्लस फॉलो ISO IEC स्टैंडर्ड वॉट एवर, उसमें इट इज़ क्लियरली मेंशन दैट अ कंस्ट्रक्टर शैल नॉट बी वर्चुअल, ठीक है। तो अगर आप कंस्ट्रक्टर को वर्चुअल बना के कंपाइल करने की ट्राई करोगे तो इट विल गिव यू कंपाइलेशन एरर। ओके, तो इसको हम देख भी लेते हैं, सिंपल एक प्रोग्राम हम लिख देते हैं। आप देखो मैंने एनिमल लिखा है, राइट, एनिमल का क्लास लिख दिया है और मैंने एक मेन फंक्शन मैं बना देता हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ इसमें, रिटर्न 0 कर रहा हूँ एंड एनिमल ए, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो एक वर्चुअल क्वालिफाइड फंक्शन है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे लिख रहा है कि कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी वर्चुअल, ठीक है। तो अब आप इसको कोई भी कंपाइलर से रन कर लो, ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्टिमाइजेशन कंपाइलर कर देगा। आप जीसीसी से करो, आप सीलैंग से करो, या फिर आप MSVC से करो, तीनों जगह ये एरर ही देगा, इसका कोई वर्क अराउंड नहीं है, बिकॉज इट इज़ बैंड एट लैंग्वेज लेवल। So if you ask this question in interview, say that the C++ standard explicitly prohibits virtual constructors. And the fundamental reason is that virtual dispatch requires a fully constructed object with a valid Vptr. But the constructor itself is the very mechanism that constructs the object and initializes the Vptr. So there exists a circular dependency and hence which cannot be resolved. Okay, that is all for this video, and okay, thank you guys.